start करते हैं. That's the first one for us. A given quantity of an ideal gas is at a pressure P and absolute temperature T. The isothermal bulk modulus of the gas is the knowledge base हो गया. ये knowledge base है. अगर ये आ गया तो फिर तो डन है. Isothermal bulk modulus of the gas दो होते हैं ना, एक isothermal bulk modulus एक adiabatic bulk modulus. bulk modulus का फॉर्मूला बोला, bulk modulus फॉर्मूला that's minus of delta P upon delta V upon V. ये हो गया. इसमें delta P upon delta V क्या है? Slope of the graph. क्या है? Slope of the graph. So the V is supposed to be equal to minus the slope of the PV curve and into the volume. और slope of the PV curve isothermal के लिए कितनी होती है? So isothermal के लिए Boyle's law लगता है PV equal to constant. That means that is delta P upon P plus delta V upon V as equal to 0. Isothermal के लिए. So we should have delta P upon P as equal to minus of delta V upon V. Correct? So delta P upon delta V, that's minus of P upon V. That's the slope for the case of isothermal. Hence the bulk modulus isothermal should be minus of minus P upon V into V. V cancels, minus minus becomes plus. So that's for B isothermal. एब्सोल्यूट टेम्परेचर का कोई Boyle's law है. The temperature constant PV is equal to mu RT. Mu RT constant. Correct है? तो PV constant. इंडिकेटर कर्व में टेम्परेचर बिहेवियर है नहीं और isothermal में टेम्परेचर constant. If it was supposed to be adiabatic, then the law would change as PV power gamma constant. So delta P upon P plus gamma into delta V upon V, that becomes 0. So from here delta P upon delta V comes out to be minus gamma into P upon V. And this is going to be the slope for your adiabatic. Hence the bulk modulus for the adiabatic will be equal to minus of minus gamma P upon V and into V. V cancels, so B adiabatic, that becomes equal to gamma into. You also relation between them कि B adiabatic जो है that is supposed to be gamma times of the B isothermal और gamma की वैल्यू हमेशा more than 1 होती है. Normal circumstances है, तो इस वजह से B adiabatic is more than B isothermal. So the gas behaves more elastic if it is taken through adiabatic thermodynamical process rather than an isothermal thermodynamical process. So answer to clear हो गया, that is B. So this is something which we need to remember because ये दोबारा use होता है कहाँ पे? Laplace formula, Newton's formula. So if the air behaves isothermal, and the speed of the sound should be root P by rho. But if it behaves adiabatic, the formula should stand as under root gamma P by rho. Right? Generalized formula कितना है? Root B by rho. Clear है जी? Understood? Right? Correct? So next one. So देखने में easy लग रहा है? Read it. Try to answer. We have the temperature of an ideal gas increased from 120 Kelvin to 480 Kelvin. If at 120 Kelvin the RMS was V, then 480 Kelvin कितना होगा? So I think it is directly from the kinetic interpretation of temperature. V T पे कैसे depend करता है? Root of T, right? So that is V RMS is supposed to be the root of T. So just use it and that's you will get the answer. सीधा ही हो गया ना? ये 480 by 120 हो गया. तो 480 by 120 कितना हो गया? 4 और रूट ऑफ 4 कितना हो जाएगा? 2. तो स्पीड क्या होगी? डबल. So that becomes your twice of it directly over. एनर्जी कैसे डिपेंड करती है? डायरेक्टली विद द टेम्परेचर. और आरएमएस कैसे डिपेंड करता है? एज द रूट ऑफ टेम्परेचर. ठीक है. एनर्जी फॉर अ कंप्लीट गैस हमने जैसे कल चेक किया था, दैट इज F into half mu RT. और एनर्जी पर मॉलिक्यूल चेक करेंगे, सो F into half kT. F will be your respective degrees of the freedom. Next one.
लंबा क्वेश्चन आ गया. There are two bodies with a thermal emissivity. Emissivity है इसका मतलब Stephen's law यूज होगा. Stephen's law का फॉर्मूला A emissivity sigma T power 4. So the one of the formula which can be used will be area emissivity into sigma into T power 4. So usually area क्या होगा 4 pi r square. Stars की emissivities होती हैं, उनकी shapes क्या है spherical है. Ratio of emissivity given है, outer surface area of the two bodies are same. ठीक है. The two bodies emit total radiant power at the same rate. The wavelength corresponding wavelength आ गई, और बड़ी डिफिकल्ट सी स्टेटमेंट है. The wavelength corresponding to maximum spectral radiancy in the radiation from the B shifted from the wavelength corresponding to maximum spectral radiancy in the radiation from A. So this is via the Wain's displacement curve. ठीक है ना, राइट. सो क्या बोला हुआ है कि शिफ्ट है. ए और बी कौन से हैं, हमें कैसे पता चलेगा ए और बी कौन से? जिसका टेम्परेचर ज्यादा है. तो किसका टेम्परेचर ज्यादा है? ए का गिवन है, तो बी का कितना है? निकालो. पूछा है तो पता चल जाएगा, या तो ज्यादा आएगा या तो उससे कम आएगा. सारी ऑप्शन है. सो फाइंड आउट द टेम्परेचर. वेवलेंथ शिफ्टेड है. देखो ये इसकी मीन वेवलेंथ है, ये इसकी मीन वेवलेंथ है. दोनों में डिफरेंस है, दैट इज डेल्टा लैम्डा. और वो जो डेल्टा लैम्डा गिवन है दैट्स गिवन एज 1 माइक्रोमीटर. मैक्सिमम स्पेक्ट्रल रेडियंसी का मतलब क्या हुआ? ओ यहां पे ई लैम्डा होगा. तो ये दोनों का अलग अलग ई लैम्डा है. तो दैट इज अ मैक्सिमम स्पेक्ट्रल रेडियंसी. तो क्या अब हमको समझ में आती है वेवलेंथ corresponding to maximum spectral radiancy. मतलब वेवलेंथ corresponding to E lambda. इसकी वेवलेंथ इसके E lambda के corresponding, इसकी वेवलेंथ इसके E lambda के corresponding. ठीक है ना, वो shifted है. कितनी shifted है? डेल्टा लैम्डा. वो हमें गिवन है, that is 1 माइक्रोमीटर. क्यों shifted है? क्योंकि दोनों का टेम्परेचर डिफरेंट है. इस वजह से तो एक का टेम्परेचर आपको गिवन है 5802, दूसरे का निकाल दो. अब वो कैसे है? तो दोनों की पावर सेम है, तो दोनों की पावर इक्वेट कर दो, और एमिसिविटी का रेशियो गिवन है, और इक्वेट करते समय एरिया भी सेम है. तो इसका मतलब एमिसिविटी इनटू सिग्मा, सिग्मा तो वैसे कांस्टेंट होता है, तो सिग्मा इनटू टी पावर 4 का प्रोडक्ट कांस्टेंट. सही है ना. तो इसका मतलब पहले की कितनी है 0.01, और उसका टेम्परेचर कितना है 5802. सो इनटू 5802 रेज़ टू दी पावर 4. ये पहले वाले के लिए. दूसरे वाले की एमिसिविटी कितनी है 0.81, एंड टेम्परेचर वो आप कैलकुलेट कर लो. आई थिंक डेटा सेट करके दिया हुआ है, क्योंकि वो 0.81 दिया हुआ है. तो 0.01 अपॉन 0.81 कितना हो गया 1/81. तो फोर्थ पावर में जाएगा 3 आ जाएगा, राइट. सो दैट इज 5802 power 4 upon 81, that is t. So ये t power 4 है. So hence t becomes as equal to 5802 upon 3, that is 1934 Kelvin. So A part is fitted. तो C और D तो उड़ गए, B रह गया चेक करने. अब आ जाओ वेन्स लॉ पे, और वेन्स लॉ पे आ जाओ. सो लैम्डा इंटू टी का प्रोडक्ट सेम है. ठीक है ना. अब किसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी? इसका टेम्परेचर घट है, तो मतलब उसकी. इसका मतलब लैम्डा फॉर बी से लिख रहा हूं, लैम्डा फॉर बी इंटू 1934, ये 1 इज इक्वल टू लैम्डा फॉर ए इंटू 5802. लैम्डा पर टी 1 इक्वल टू लैम्डा टू टी 2, क्योंकि वेन्स लॉ क्या होता है लैम्डा इंटू टी प्रोडक्ट इज कांस्टेंट. बस 2 इक्वेशन मिल गई. अच्छा कौन सी ज्यादा है, लैम्डा या लैम्डा बी? लैम्डा बी. इसका मतलब डेल्टा लैम्डा का क्या मतलब हो गया लैम्डा बी माइनस लैम्डा. तो आपकी 2 इक्वेशन आ गई 1 एंड यू कैन फाइंड द वैल्यू फॉर द लैम्डा ए एंड लैम्डा. और उसके अंदर से आपको क्या चाहिए लैम्डा बी चाहिए. सब लैम्डा बी फाइंड कर दोनों इक्वेशन.
So good question, which basically makes us revise two of the important formulas, two of the important law in your radiation. That's a black body radiation sequence law formula, and the second one is your Wayne's displacement. But ये दोनों के दोनों इसमें in fact एक मतलब बहुत इंपॉर्टेंट सी बात होती है कि जो इसका एरिया होता है कर्व का, उसे हमें क्या मिलता है? व्हाट्स द एरिया बिलो द कर्व? इट गिव्स यू द सीक्वेंस. The area below this particular curve generates the sequence. बहुत इंपॉर्टेंट कर्व है. एक तो ये समझाता है कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो जो वेवलेंथ्स थी पहले उससे ज्यादा स्प्रेड है. मतलब लोअर टेम्परेचर कर्व पूरा एनगल्फ्ड है, और टेम्परेचर बढ़ाओगे तो और वो एनगल्फ हो जाएगा. जिसका मतलब उसकी रेंज क्या कर रही? बढ़ती जाएगी. क्लियर? राइट. आंसर आ गया है ये 1.5 नहीं है? आ रहा है ना? यस सर. मतलब 1.5 आ रहा होगा या 1.5 आ रहा होगा? यस. क्योंकि ये आपका 3 टाइम्स हो गया और डिफरेंस 1 है. एक 0.5 और दूसरा 1.5, तो डिफरेंस 1 हो गया और रेशियो आपका 3 आ गया. सो लैम्डा भी आपने पहले ही बोला था ज्यादा होगा, ज्यादा होगा ना? तो हेंस इट इज 1. क्लियर? नेक्स्ट ग्राफ. An ideal gas is taken from the state A to the state B, state A to the state B, and pressure is from P to P by 2, and volume is from V to 2V. Along a straight line path in the PV diagram, straight line path है. Select the correct statement. पढ़ो भाई बताओ. So ग्राफ गिवन है, ग्राफ को देख के आपको ऑप्शंस के बारे में जानकारी बता. कौन सा प्रोसेस है? आइसोथर्मल है, एडियाबैटिक है, आइसोबेरिक है, आइसोकोरिक है. हाँ भाई ये प्रोसेस ये जो बना हुआ है, व्हाट इज दिस काइंड ऑफ अ प्रोसेस? आइसोथर्मल है, एडियाबैटिक है, आइसोबेरिक है, आइसोकोरिक है. कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है ना? रीजन क्योंकि आइसोथर्मल और एडियाबैटिक तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोलास बनते हैं, वो है नहीं. और आइसोबेरिक की स्लोप 0 होती है और आइसोकोरिक की स्लोप इनफाइनाइट होती है. सो कोई भी नहीं है, इसलिए तो क्वेश्चन, इसलिए कॉन्सेप्चुअल है, ये तो न्यूमेरिकली हो जाता. सो ये पार्ट कह रहा है इन द वर्क डन बाय द गैस इन द प्रोसेस A to B exceeds the work that would be done if the system were taken from A to B along the isotherm. कह रहा अगर A से B के बीच में आइसोथर्म बनाते हैं, बनाना जरा A से B के बीच में आइसोथर्म कैसे बनेगा? बन सकता है क्या? पहले देखो बन भी सकता है कि नहीं बन सकता. अब मेरे को कैसे पता चलेगा कि बन सकता है कि नहीं बन सकता? मैं क्या करूंगा, इस पॉइंट पे टेम्परेचर चेक मारूंगा. टेबल टेम्परेचर चेक मारो, प्रेशर कितना P, वॉल्यूम कितना V, तो टेम्परेचर कितना PV अपॉन म्यू आर. और फिर B पे चेक मारो, तो P by 2 into 2V, तो सेम आ रहा है. ठीक है ना? सेम आ रहा है. पर इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आइसोथर्मल है, बस इनिशियल फाइनल सेम है. तो अगर मैं इसमें आइसोथर्मल बनाता तो फिर A और B के बीच में जो आइसोथर्मल बनता वो ऐसे बन जाता, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की तरह. और जो मुझे गिवन है वो क्या गिवन है? दैट्स अ स्ट्रेट लाइन. तो भाई किसमें वर्क डन ज्यादा आएगा? स्ट्रेट हैंड वाले में या आइसोथर्मल में? जिसके नीचे का एरिया ज्यादा हो. किसके नीचे का एरिया ज्यादा है? स्ट्रेट हैंड. तो क्या स्टेटमेंट बन सही है? वर्क डन इन द प्रोसेस A to B exceeds the work that would be done if the system were taken from A to B along the isotherm. सही हो गया? ट्रू हो गया? तो पहली स्टेटमेंट अपनी बढ़िया है. बाकी पढ़ने की जरूरत है, पढ़ लेते हैं. इन द TV diagram the path AB becomes a part of parabola. बनेगा कि नहीं बनेगा? अच्छा उसकी इक्वेशन लिख दो, उसका गैस लॉ लिख दो. पीवी का गैस लॉ लिख दो. स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है. स्लोप कितनी है? स्लोप भाई इसकी एक तो नेगेटिव है और ये कितना हो गया? P by 2 और वो कितना है? V. सो माइनस P by 2V. ये P by 2 है और ये V है और नेगेटिव है, सो माइनस P अपॉन 2V. सो दैट्स माइनस P अपॉन 2V. सही लिखा ना? और इसको V नॉट लिखना, तो माइनस P अपॉन 2V नॉट एंड इंटू V. और इंटरसेप्ट भी होगा. इंटरसेप्ट कितना ढूंढ लेते हैं, प्लस C लिख लेते हैं, है ना? और एक पॉइंट को सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, तो इसको P नॉट और P नॉट by 2 रख लेते हैं. तो इसका मतलब P कितना है? P नॉट. सो फिर V कितना है? V नॉट, वो जो पॉइंट है A पॉइंट.
प्रेशर कितना पी नॉट है, वॉल्यूम कितना है वी नॉट है, सो प्लस सी, ये कैंसिल हो गया, सी कितना हो गया पी नॉट प्लस पी नॉट बाय 2 है ना, सो दैट बिकम 3 पी नॉट बाय 2, दैट बिकम सी। तो मेरे पास गैस लॉ तैयार हो गया है एंड पी बिकम्स इक्वल टू माइनस पी अपॉन 2 वी नॉट इंटू वी एंड प्लस 3 पी नॉट अपॉन 2, ये मेरा गैस लॉ, ये पी वी गैस लॉ है। पर चाहिए नहीं मुझे टीवी चाहिए, तो क्या करूं, एलिमिनेट करूं किसको, प्रेशर को, सो एलिमिनेट द प्रेशर ओवर देयर, पी नॉट, सो एलिमिनेटिंग द प्रेशर वी हैव पीवी एज इक्वल टू म्यू आर टी, सो पी पूरा का पूरा यहाँ प्लेस करो कंप्लीटली, और देखो आपका इक्वेशन क्या बनती है। That should be minus P naught upon 2V naught into V plus 3P naught upon 2 and into V, है ना, so ये V स्क्वायर हो गया, ये V हो गया, मेरे हिसाब से बन गया कि टीवी ग्राफ क्या बनेगा आपका पैराबोला, करेक्ट है, so hence the B part is absolutely correct, it is a part of a parabola, clear है, right, what about the C part, in the PT diagram the path is again a hyperbola, PT क्या करें, V हो रहा है, तो इस इक्वेशन को V के फॉर्म में लिख दो, इस इक्वेशन को पलट के V के फॉर्म में लिख दो, PV लॉ ही है ना, तो V इन द टर्म्स ऑफ P लिख दो और उसको यहाँ पे प्लेस कर दो, सबकी PT इक्वेशन बन जाएगी। सो व्हाट इज V फ्रॉम हियर, चेक करो व्हाट विल बी द V फ्रॉम हियर, इसको इधर ले आए, इसको इधर लाना पड़ेगा, P माइनस 3P नॉट बाई 2 इंटू 2V नॉट अपॉन माइनस P नॉट, तो क्या बना भाई बोलो, व्हाट इज V फाइनली इक्वल टू 2V नॉट अपॉन P नॉट माइनस 2V नॉट अपॉन P नॉट एंड इंटू 3P नॉट बाई 2 प्लस P प्लस माइनस P माइनस 3P नॉट बाई 2, ये बन गया। अब इसमें प्लेस कर दे V की वैल्यू, सो इट शुड बी P इंटू V की जगह माइनस 2V नॉट अपॉन P नॉट एंड इंटू P, और सेकेंड टर्म कितनी प्लस हो गई, दैट इज प्लस 6, नहीं 2 कैंसिल हो गया, 3V नॉट, दैट इज प्लस 3V नॉट, है ना, इसको मल्टीप्लाई करके विद योर वैल्यू, ठीक है ना, पूरी की पूरी करेक्ट है, क्लियर है, एंड दिस इज इक्वल टू म्यू आर टी, तो ये तो मेरे ख्याल से फिर से पी स्क्वायर बन जाएगा, तो ये फिर से पैराबोला बन जाएगा, हाइपरबोला करते हैं, इट इज गोइंग टू बी पैराबोला, क्लियर है। हम एडियाबैटिक में भी तो ऐसे ही करते हैं, पी वी पावर गामा टी वी पावर गामा माइनस 1 एंड P पावर 1 माइनस गामा T पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, तो भी हम किसका सहारा लेते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन का, अभी भी हमने वही करा, हमने एक गैस लॉ एस्टैब्लिश कर लिया और फिर आइडियल गैस इक्वेशन की मदद से उसको अदर फॉर्मेट्स में कन्वर्ट कर लिया, डी पार्ट। अगर हम A से B जा रहे हैं, इनिशियल फाइनल टेम्परेचर तो सेम है, टेम्परेचर इंक्रीज करके डिक्रीज हुआ, हाँ या ना, मतलब बीच में कहीं टेम्परेचर का मैक्सिमम आया होगा। अब हमारे पास आसानी है क्योंकि आपके पास ये देखो ये है, ये क्वेश्चन है, इसको डिफरेंशिएट मारो और चेक मारो कि मैक्सिमम टेम्परेचर कितना, तो dt अपॉन dB निकालना है और इसको 0 कर दो, तो ये पूरी इक्वेशन हमारी है माइनस ऑफ P नॉट अपॉन 2V नॉट V स्क्वायर प्लस 3P नॉट अपॉन 2 इंटू V एंड 1 अपॉन म्यू आर इज इक्वल टू T, राइट, और इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं और dt अपॉन dV निकाल के इसको 0 कर दो, तो इजी हो गया, माइनस P नॉट अपॉन 2V नॉट इंटू 2V and plus 3P नॉट by 2 is equal to 0,
v के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया, क्या मतलब ये 2 और 2 तो कैंसिल हो गया, तो v कितना मिला 3/2 v नॉट आ रहा है, देखो चेक करो है ना, v इज कमिंग 3/2 v नॉट, 3/2 v नॉट, ठीक है। डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0 कर दिया, v की वैल्यू आ गई 3/2 v नॉट। अब इसमें वापस प्लेस करता हूं, वापस प्लेस करता हूं और t मैक्स की वैल्यू आ जाएगी, this in this back, the value for the v equal to 3v naught by 2, and we should get a value for the t max. जब हम केवीपीवाई वाला आर्टिकल मतलब जब कर रहे थे क्वेश्चंस, तो सिर्फ डी पार्ट पे एक पूरा क्वेश्चन बना के दिया था, सिर्फ डी पार्ट पे। उसके अंदर ऑप्शन सी इट इंक्रीजेस, इट डिक्रीजेस, इट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस, इट डिक्रीजेस देन इंक्रीजेस, सिर्फ डी पार्ट के ऊपर। तो इसी तरीके से चारों ऑप्शंस के 4 अलग अलग क्वेश्चन बन सकते हैं, है ना, कि वर्क डन ज्यादा होगा, कम होगा, बराबर होगा, इसका पैराबोला बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा, हाइपरबोला बनेगा, है ना। तो हर एक पार्ट इज अ डिफरेंट क्वेश्चन, सो वी हैव सॉल्व्ड 4 क्वेश्चंस राइट सेपरेटली। टी मैक्स की वैल्यू 9/8 p naught v naught by r, 9/8 1 by v naught by r. you know 9/8 p naught v naught by r, so t max is coming as equal to 9/8 p naught v naught by r। और ये कब बन रहा है, when it is at 1.5 v naught, तो 1.5 v naught ये हो गया, just 1.5 v naught, और इस पर टेम्परेचर इनसे ज्यादा है, ये pv अपॉन म्यू आर है, मतलब p naught v naught by म्यू आर है, और वो 9.8 है, 9/8 मतलब कितना हो गया 1.1 समथिंग। इसका मतलब इस पॉइंट पे, उस पॉइंट को सी रख ले, तो सी पे टेम्परेचर क्या आ रहा है मैक्सिमाइज, तो ए टू सी क्या कर रहा है टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, और फिर सी टू बी क्या कर रहा है डिक्रीज हो रहा है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, इट्स वर्किंग एब्सोल्युटली करेक्ट। आइसोथर्म के कर्व से भी तो कंपेयर कर सकते तो ये मैंने तरीका बताया था केवीपीवाई में कि दूसरे तरीके से कैसे करना है। तो आप बोलोगे सर फिर ये क्यों करवाया, क्योंकि मैं आपको एडिशनल क्वेश्चन देने वाला हूँ, स्केच द टीवी ग्राफ फॉर दिस। ऐसे भी तो क्वेश्चन आता है ना कि आइडेंटिफाई विच इज अ ग्राफ, राइट, सो काइंडली स्केच द टीवी ग्राफ फॉर दिस। अब आपके पास सारा डेटा है कि टेम्परेचर किस पॉइंट पे कितना था, तो आपके क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ स्केचिंग क्या हो गए, ए सी एंड बी, 3 पॉइंट हो गए। आप तो सोचते ए और बी के बीच में बनाऊंगा मैं, पर आपको बीच में बिहेवियर मिल गया और वो पॉइंट सी मिल गया। सो ग्राफ स्केचिंग का क्वेश्चन इस तरीके से आ गया, 5वां क्वेश्चन, दैट आइडेंटिफाई विच इज द करेक्ट ग्राफ। वो मैंने बताया नहीं है, पर आप बना के देखो व्हाट शुड बी द ग्राफ। ए पे टेम्परेचर कितना है, पी नॉट वी नॉट बाय म्यू आर, फिर टेम्परेचर क्या करेगा इंक्रीज होगा, फिर क्या करेगा डिक्रीज होगा, तो क्या बनना है पैराबोला। तो बन गया भाई, तो बन ही गया फिर बच क्या गया फिर, तो ऐसे है ना। यहाँ पे वैल्यू कितनी, पी नॉट वी नॉट अपॉन म्यू आर, इस पे वॉल्यूम कितना वी नॉट, फिर इस पे वॉल्यूम कितना दैट इज 1.5 वी नॉट, और ये 9/8 पी नॉट वी नॉट बाय म्यू आर, and over here once again it gets back to this, so that's the process, that is A, this is C, and this is B, and this is 2B, that's what you clear है, good। और जो दूसरा मेथड हम बोल रहे हैं वो ये है, ये आपका ये पॉइंट A और ये पॉइंट B था, और ये पॉइंट हमने C जेनरेट करा अपने दिमाग से। अब जब आपने इस पॉइंट को जेनरेट करा तो फिर आपने आइसोथर्म्स बना ली, तो ये एक आइसोथर्म है और दूसरा आइसोथर्म आपने ये बनाया, ठीक है ना। और जो ऊपर की तरफ आइसोथर्म बनता है उसका टेम्परेचर क्या होता है ज्यादा, तो इसका मतलब जब हम ए से सी जा रहे हैं तो टेम्परेचर एट सी इज डेफिनेटली मोर देन टेम्परेचर एट ए, और जब सी से बी जा रहे हैं तो टेम्परेचर ऑफ बी इज लेस देन टेम्परेचर ऑफ सी, क्योंकि जो ऊपर वाला कर्व है उस पर टेम्परेचर क्या रहेगा ज्यादा। उससे आपको क्लियर हो जाता है कि ए टू सी टेम्परेचर क्या कर रहा था इंक्रीज, सी से बी टेम्परेचर क्या हो गया डिक्रीज, एंड रीस्टोर्स टू द ओरिजिनल वैल्यू। सर
एग्जैक्ट वैल्यू के लिए हमें डिफरेंशिएट ही करना है। इस जो डेटा गिवन है उसके हिसाब से तो जजेबल था। जजेबल कैसे था देखो, क्योंकि जो वैल्यूज गिवन थी मतलब उसको कोइंसिडेंस बोलो, 45 मैथमेटिकल सेटिंग्स बोलो, जो बोलो, तो यहाँ पे प्रेशर हमें पी नॉट है और यहाँ पे पी नॉट बाई 2 है, ये वी नॉट है और ये ट्वाइस ऑफ वी नॉट है, करेक्ट है ना, ये हो रहा है। तो ये मिड पॉइंट आ रहा है, अब उसको आप मैथमेटिकल सेटिंग बोल सकते हो ना कि क्या हो रहा है, मिड पॉइंट आ रहा है। तो वो मिड पॉइंट आपका 1.5 वी नॉट, उसे प्रेशर भी मिल गया। प्रेशर कितना होगा 3 पी नॉट बाई 4, 3 पी नॉट बाई 4, ठीक है। और ये कितना हुआ 3 वी नॉट बाई 2, तो टेम्परेचर भी डिराइव हो गया 3 पी नॉट बाई 4 इंटू 3 वी नॉट बाई 2, दैट इज 9 बाई 8 पी नॉट वी नॉट अपॉन जो कि उतनी मेहनत से आया वो यहाँ से दिया, ठीक है, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। फिर इजी क्वेश्चन आ गया। किसी भी प्रोसेस के लिए, कोई भी प्रोसेस मतलब आइसोकोरिक, एडियाबैटिक, आइसोथर्मल और पॉलीट्रॉपिक, डेल्टा यू का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन इंटरनल एनसीवी डेल्टा टी और म्यू सीवी डेल्टा टी, दैट्स व्हाट वी नीड टू रिमेंबर, दैट्स म्यू सीवी डेल्टा टी। और ऐसा क्यों है कि सभी प्रोसेस के लिए यही फॉर्मूला होता है, ऐसा क्यों है, मैं नो द रीजन फॉर दैट। वर्क डन का फॉर्मूला बदलता रहता है ना, हीट एक्सचेंज का फॉर्मूला बदलता रहता है, तो फिर ऐसा क्यों है कि ये फॉर्मूला सभी तरीके के प्रोसेसेस के लिए सेम रहता है, व्हाट इज द रीजन फॉर दैट। फर्स्ट तो आप बोल सकते हो सर क्योंकि ये स्टेट वेरिएबल है, राइट, इसका स्टेट वेरिएबल इट डिपेंड्स ओनली अपॉन इनिशियल एंड फाइनल। दूसरा, दिस रिलेशन इज इम्पार्टेड फ्रॉम केडीजी, जो कि आज के लेक्चर में शुरू करा ना हमने, एनर्जी बनाई थी कितनी, एफ इंटू हाफ म्यू आर टी, उसी में डेल्टा डी लगाएंगे सो डेल्टा यू आ जाएगा। इसका मतलब केडीजी से आ रही है, तो थर्मोडायनामिक्स की बैकअप थ्योरी क्या है, केडीजी, एंड बिकॉज ऑफ विच दिस इज एप्लीकेबल फॉर एनी प्रोसेस, ठीक है जी। चलो अब क्वेश्चन करो। ये प्रोसेस क्या है, आइसोकोरिक या आइसोबेरिक, आइसोबेरिक, कांस्टेंट प्रेशर, लेकिन ये लगेगा मतलब हमारे दिमाग में सीपी घूमेगा क्योंकि आइसोबेरिक है, पर सीपी बोनस में आता है, जैसे बोनस डेल्टा यू के टर्म, और फिर हमारे दिमाग में एक और रिलेशन है सीपी सीवी का, इनफैक्ट दो है, सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर और सीपी अपॉन सीवी इक्वल टू गामा, इतनी सारी चीजें का आंसर आई है। ये बहुत एक मतलब बहुत इजी सा सॉल्यूशन है इसका, मतलब पेन रख के आंसर निकाल सकते, रिसर्च काइंड ऑफ क्वेश्चन, यू कैन कैरी ऑन विद द पेन्स, पर मतलब पेन रख के आंसर आ सकता है। देखो आइसोबेरिक में डेल्टा यू भी होगा, डेल्टा डब्ल्यू भी होगा, तो क्वेश्चन की नब्ज क्या कि जितनी हीट गई वो किस तरीके से डिवाइड होगी, भाई वर्क डन में कितना लगाएगा और इंटरनल एनर्जी में कितनी यूज करेगा, भाई जिस प्रकार उसकी सीवी वैल्यू बिहेव करेगी वैसे इंटरनल एनर्जी खींच लेगा, बाकी छोड़ देगा वर्क डन के लिए। सीपी इक्वल टू सीपी प्लस आर, नहीं उस हिसाब से डिवाइड हो जाएगा, सीपी इक्वल टू सीपी प्लस आर उसी तरीके से होगा, क्योंकि एक्चुअली में अगर आप लगाओगे भी तो वही मिलेगा। वही कैसे मिलेगा, डेल्टा क्यू कैसे लिखोगे, म्यू सीपी dt, डेल्टा यू म्यू सीवी dt, और वर्क डन म्यू आर dt, तो बना दो वही, दैट इज सीपी इक्वल टू सीवी प्लस आर, है कि नहीं। अच्छा बहुत बढ़िया। ऊपर देखो कौन सी गैस है, डायटोमिक के लिए सीवी 5r/2, तो ये कितना 5r/2, ये कितना r, ये कितना 7r/2, खत्म फ्रैक्शन 5/7, मतलब दिस इज 7r इक्वल टू 5r प्लस 2r, so 5 parts of it is for internal energy increase and 2 parts for work done। 70 कैलोरी एनर्जी थी, 50 कैलोरीज फॉर इंटरनल एनर्जी, 20 कैलोरीज फॉर वर्क डन, है ना मेंटल क्वेश्चन।
पेन रख के सॉल्व हो सकते। क्लियर, डन। सो आंसर डन हो गया 5/7। NCV मार्क इनकरेक्ट, मार्क इनकरेक्ट, क्योंकि बाद में हम यही बोलते ओह हमने नहीं पढ़ा, देखो बोल्ड करके लिखा है इसलिए मार्क इनकरेक्ट। सो प्लीज रीड एंड मार्क इनकरेक्ट। पहला एक एक करके पढ़ते हैं, बड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन है ना ये वाले, क्योंकि मार्क करेक्ट हो सिंगल आंसर हो तो जैसे करेक्ट मिल गया बाकी ऑप्शन के बाहर में, लेकिन मार्क इनकरेक्ट में अगर लास्ट वाला हुआ तो एक एक पढ़ना पड़ेगा। तो पढ़ते पहला, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज अ कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस फ्रॉम टेम्परेचर T1 टू T2 इज इक्वल टू NCV T2 माइनस C1। गलत नहीं है, एनसीपी नहीं होना चाहिए, पर एनसीपी तो हीट होगी ना। डेल्टा यू तो अभी सीखा हमने, सबके लिए क्या रहता है, सेम रहता है। इसका मतलब फर्स्ट पार्ट तो बिल्कुल सही है। चलो बी पार्ट, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस एंड द वर्क डन बाय द गैस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड इन एन एडियाबैटिक प्रोसेस। फर्स्ट लॉ लगा लो। फर्स्ट लॉ एडियाबैटिक में क्या होता है, डेल्टा क्यू 0 इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। अरे साइन में तो फर्क है, डेल्टा डब्ल्यू कितना हो गया, माइनस ऑफ डेल्टा यू, पर वो साइन पूछ ही नहीं रहा, क्या कह रहा है, मैग्नीट्यूड देख लो, तो बिल्कुल सही है। अच्छा, वर्क डन इन एडियाबैटिक का फॉर्मूला बताना। वर्क डन इन एडियाबैटिक का फॉर्मूला बताओ। मैं आसान वाला बताऊं, माइनस डेल्टा यू। फॉर्मूला माइनस डेल्टा यू, और डेल्टा यू का फॉर्मूला म्यू सीवी डेल्टा टी, सो माइनस म्यू सीवी डेल्टा टी। इससे आसान तो नहीं हो सकता, है ना। सो दैट इज अ वर्क डन इन एडियाबैटिक। व्हाट इज अ वर्क डन इन एडियाबैटिक, दैट इज इक्वल टू माइनस म्यू सीवी एंड डेल्टा टी। अब अपने आप को परेशान करना, कर लो, नहीं करना तो फिर सीवी की वैल्यू बताओ। सीवी की वैल्यू बोलो। सीवी के बड़े फॉर्मूले होते हैं, सीवी होता है एक RF/2, F इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम। हाँ, वो वाला चल जाएगा यहाँ पे, R अपॉन गामा माइनस R। रिप्लेस इट, तो आपको अपना मनपसंद वाला फॉर्मूला मिल जाएगा, म्यू R अपॉन गामा माइनस 1 डेल्टा टी। अब बोलो जैसे गामा माइनस 1 नहीं, 1 माइनस गामा होता है, तो माइनस 8 हो गया। सर ऊपर म्यू R डेल्टा टी नहीं होता, सो P फाइनल B फाइनल माइनस P इनिशियल। ठीक है जी। चलो, इन्हीं सारी बातों को एक क्वेश्चन टेस्ट कर रहा था। थर्ड, इंटरनल एनर्जी डज नॉट चेंज इन आइसोथर्मल। बिल्कुल बढ़िया, टेम्परेचर चेंज होता नहीं है, तो डेल्टा यू कितना रहेगा, 0, है ना। मतलब ये हमारे है नहीं ये है नहीं। एंड डी, नो हीट इज एडेड और रिमूव्ड इन एडियाबैटिक प्रोसेस। ये तो फैक्चुअल हो गया, ये है। चेंज ऑफ स्टेट हैज नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अगर अजीब होता है चेंज ऑफ स्टेट, अरे टेम्परेचर तो चेंज होता ही नहीं है, तो इंटरनल एनर्जी चेंज तो 0 होगी, पोटेंशियल एनर्जी चेंज, because the structure is going to change, the bonds are going to be broken and formed. In that condition, there will be the internal potential energy changes, and therefore the statement is incorrect. Internal potential energy change of state में निकलती कैसे? इसका भी एक बहुत बढ़िया प्रीवियस क्वेश्चन है। कैसे निकलेगी? एक ऑप्शन होगी डेल्टा यू 0, तो वो तो इस क्वेश्चन ने बचा लिया कि 0 नहीं होगी। अब बोलेगी निकालो, तो कितना निकालोगे? फॉर्मूला तो फिर म्यू सीवी डेल्टा टी तो गया, यहीं पे फर्स्ट लॉ एंटर करता है, एंड फर्स्ट लॉ कैन इनडायरेक्टली डिलीवर यू द वैल्यू, क्योंकि केडीजी तो दे नहीं पा रही, तो इनडायरेक्ट आएगा। कैसे? डेल्टा क्यू से, एज डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। अब जब मेल्टिंग हो रही है, मान लो मेल्टिंग हो रही है या वेपोराइजेशन हो रही है, तो क्या प्रेशर सेम है? तो वी डिफाइन इट, व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, 100 डिग्री सेल्सियस एट 1 atm। इसका मतलब उस समय प्रेशर क्या है, कांस्टेंट, पर आइसोबैरिक नहीं, क्योंकि टेम्परेचर भी कांस्टेंट है ना। तो फॉर्मूले वर्क डन पे किसका लगा है, प्रेशर नहीं बदल रहा, पर वॉल्यूम चेंज हो रहा है, तो पीडीवी होता है ना। तो इसका मतलब वर्क डन क्या लगेगा, पी इंटू डीवी। उसमें पी पता है आपको, बिल्कुल पता है, कितना है, 1 atm, और डीवी 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर फॉर्म्स हाउ मच स्टीम। इन्हीं केसेस मतलब पढ़ा होगा कहीं पे, देखा होगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब फॉर्म्स हाउ मच स्टीम। जैसे मैं बोलूं 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आइस विल फॉर्म हाउ मच वाटर, कितना बनेगा? ये तो सूखा है। 1 सेंटीमीटर क्यूब आइस विल फॉर्म हाउ मच वाटर, ज्यादा है कम? पहले तो ज्यादा ही होगा, नहीं ज्यादा या कम? 1 सेंटीमीटर क्यूब आइस फॉर्म्स
more than 1 centimeter cube water or less than 1 centimeter cube water? कम है ना, क्योंकि डेंसिटी ऑफ आइस क्या होती है, कम, उसकी ज्यादा। डेंसिटी ऑफ आइस कितनी होती है? 0.92, कितनी? 0.92। वाटर की 1। सो आंसर बोलो, 1 centimeter cube of ice forms how much water? 0.92। ठीक है। अच्छा, स्टीम में क्या होता है भाई? 1 centimeter cube how much forms? तो स्टीम कितनी होती है? इतनी से इतनी हो जाएगी, नहीं वो तो बढ़ेगी। कितनी? इस कमरे में 1 centimeter cube छोड़ दी, क्या होगा फिर? काफी मतलब कितनी? इज 1671 centimeter cube। Astonishing ना, 1671 centimeter cube, and that's also the data for the previous problem. So P पता है 1.01 into 10 power 5, dV पता चल गया 1671 minus 1 centimeter cube into 10 power minus 6, तो भी सेंटीमीटर क्यूब है, तो पीडी भी निकाल लोगे, डन है। कितनी हीट सप्लाई करी, वो कितनी है? ml। कितनी हीट सप्लाई करी? ml। कौन सी एल? वेपोराइजेशन। सेम इनटू एलवी, इनडायरेक्टली आपका डेल्टा यू कैलकुलेट। And that delta U is not mu CV delta D now. अब बिल्कुल नहीं है, and because this is now coming from change in potential energy. That's an indirect calculation, the very special question from the first law of thermodynamics. जैसे free expansion एक special question होता है, this is defined by the first law of thermodynamics, yes or no? The free expansion can be explained by the first law of thermodynamics, yes or no? The expansion can be explained by the first law of thermodynamics, yes or no? अच्छा, इनफैक्ट आगे बढ़ जाते हैं, कैन इट बी एक्सप्लेन्ड बाय द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स? कितना बता सकता है? कैन यू इक्वेट 0 equal to 0 plus 0? Can you equate 0 equal to 0 plus 0? You cannot. And in the case of the free expansion, delta Q, delta U, delta W, all the three are 0. Which means that first law is not able to guide you for free expansion. So second law, work done upon heat input, efficiency 0 होगी. Then you require the third law, and that's the entropy behavior works in. So will the entropy be 0? Entropy change will be 0. No. Because it's a real-time process, and in the real-time process, entropy changes have to be more than 0. And hence it can be explained only by the third law. आगे बढ़ते हैं, next one. ये तो बोनस, दिस इज बोनस, फिर भी आता हो तो बोनस मिलता जब आता हो तो, और मेरे को रीजन चाहिए साथ, मेरी तरफ से ये रीजन चाहिए साथ, to give the reason associated with some formula, जिससे मतलब विश्वास हो जाए कि हाँ ऐसा ही होता, भूले भी ना हो, कभी वो फॉर्मूला आ जाए उसके थ्रू इंटरप्रेट करना क्या है, या सजेशन रीजनिंग टाइप हो। अच्छा ये बताओ, मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला क्या होता है? 1 upon √2। ये √2 कहां से आता है? वो प्रोबेबल स्पीड, प्रोबेबिलिटी है ना, प्रोबेबल स्पीड मतलब प्रोबेबिलिटी। और बुक्स में कहीं पे लिखा होता है ड्यू टू प्रोबेबिलिटी, ये नहीं बताते कि प्रोबेबल स्पीड यूज करेगी, तो फिर √2 का फॉर्म फैक्टर आएगा। सो √2 पाई आगे एन डी स्क्वायर, व्हाट इज एन? नंबर ऑफ मोल्स। व्हाट इज एन? नंबर डेंसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो फिर ये लॉ यूज करोगे P इक्वल टू NKT, P इक्वल टू म्यू आर टी को स्लैप करके, K क्या है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, एब्सोल्यूट टेम्परेचर एंड P। तो N की वैल्यू पिक करो, नंबर डेंसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स पिक करो, फिर बनेगा आपका P बाय KT, so that is KT upon √2 pi and PD square. This can give you the answer. This can give you the answer. मीन फ्री पाथ ज्यादा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए आइडियल गैस में? सोचो और बताओ। मीन फ्री पाथ ज्यादा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तभी तो साइज ऑफ द मॉलिक्यूल नेग्लिजिबल आएंगे। जब उनके बीच का डिस्टेंस ट्रैवल्ड होगा वो क्या होता है? ज्यादा। तभी तो पॉइंट ऑब्जेक्ट बोला जाएगा। केमिस्ट्री की तरह नहीं सोचना, फिजिक्स की तरह सोचना। पॉइंट ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन सेटिस्फाई हुई तो लैम्डा क्या होना चाहिए? ज्यादा, तो कर लो ज्यादा। कैसे होगा? टी बढ़ाओ पी घटाओ। क्या करो? टी बढ़ाओ पी घटाओ। So high temperature, low pressure. So real gas is going to be behaving as an ideal gas at a
हाई टेम्परेचर कहाँ है भाई? हाई T bar, टेम्परेचर, लो प्रेशर, पहली अंडरलाइन। नेक्स्ट वन, ये भी इजी लग रहा है। अच्छा, केडीजे के क्वेश्चन मोस्टली इजी है। थर्मो के लंबे होते हैं, केडीजे के छोटे होते हैं ज्यादातर। मतलब देखो, क्योंकि थर्मो में एक्सप्लेन करना पड़ता है ना पूरा का पूरा प्रोसेस, और तीन टर्म्स हैं, डेल्टा क्यू, डेल्टा यू, डेल्टा डब्ल्यू। अच्छा, ये भी तो ऐसे ही लग रहा है। एडियाबैटिकली कंप्रेस टू 0.7, टेकिंग द इनिशियल टेम्परेचर टू बी टी, द वर्क डन इन द प्रोसेस। तो अपना थर्मो का ही क्वेश्चन निकालो। 6 लीटर इनिशियल वॉल्यूम गिवन है, फाइनल वॉल्यूम कितना हो गया? 0.7 हो गया। वर्क डन इन द प्रोसेस। कौन सी गैस है? कौन सी गैस है? मोनोटॉमिक। हीलियम है ना, मोनोटॉमिक। तो उससे क्या पता चला? गामा। गामा कितना? 5/3 3 बाय नहीं हो सकता, मोर देन 1, 5/3 है ना, 5/3। ये सारी इन्फो तो पता है। वर्क डन निकाल दो। वर्क डन का फॉर्मूला तो आपने बताया ही था। ये क्या लिखा है? 6 लीटर ऑफ हीलियम गैस एट एसटीपी। एसटीपी तो जरूरत नहीं पड़ेगी ना, क्योंकि आंसर डी के रिस्पेक्ट में। तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? T1 है। कौन सा फॉर्मूला लगाए तो बताओ। वर्क डन का अभी तो बताया था। वर्क डन इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू माइनस म्यू सीवी डेल्टा टी। सीवी कितना? आर अपॉन गामा माइनस 1 इनटू डेल्टा टी। यही लगाएंगे ना, प्रेशर वॉल्यूम के चक्करों में थोड़ी फंसेंगे, क्योंकि प्रेशर तो बताया नहीं, वॉल्यूम बताया है। वैसे भी कर सकते हैं, फिर नया प्रेशर निकालना पड़ेगा। ओरिजिनल प्रेशर कितना होगा? एसटीबी वाला, इसलिए गिवन है स्मार्टली। तो फिर फाइनल प्रेशर निकालना पड़ेगा किससे? पीवी पावर गामा से। अगर टेम्परेचर से निकालना है तो टीवी पावर गामा माइनस 1 निकालो, उससे फाइनल टेम्परेचर निकालो। तो डेल्टा टी में फीड कर लो, इनिशियल टेम्परेचर पे गिवन, मतलब फाइनल टेम्परेचर को T1 के रिस्पेक्ट में निकालो, रिप्लेस कर। देखो भाई क्या होता है। T1 6 गामा माइनस 1 मतलब 5/3 माइनस 1 कितना? 2/3। 2/3 ना, 2/3 इज इक्वल टू T final and 0.7 power 2/3 TB power gamma minus 1. So T final will be 6 upon 0.7 power 2/3 into T1. 6 upon 0.7 कितना? 60/7। वो कितना हुआ? 8.5 7 8 56 40 7 5 35 8.55 है ना। 8.55 का क्यूब रूट और उसका स्क्वायर, बस 8.57 का क्यूब रूट 2 तो 8 हो गया। 2.2 का स्क्वायर। देखो फिर ऑप्शन, उसमें डालो नंबर ऑफ मोल्स गिवन है। नंबर ऑफ मोल्स का फिर प्रेशर पे जाना पड़ेगा, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स तो मिसिंग है, तो ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। तो ये उड़ गया, तो फिर आपको पीवी पावर गामा ही लगाना पड़ेगा। एसटीपी कितना होता है ये बाद में कन्वर्ट करेंगे। आंसर तो टेम्परेचर में है, तो नहीं हो जाएगा ना। देखो P इनिशियल मतलब एटमॉस्फेरिक है, और इनिशियल वॉल्यूम कितना है? 6 इज इक्वल टू, पर म्यू तो फिर भी आएगा ना फाइनल आंसर में।
तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे 6 लीटर ऑफ हीलियम गिवन है, इससे उससे आ जाएगा ना, दिमाग ही नहीं लगाते सब छोड़ देते तो 6/22.4 हो गया, यही हुआ ना, बस फिर डालो ना फिर इसमें, सो हेंस दैट वर्क डन शुड बी इक्वल टू 6/22.4, ये हो गया आपका म्यू, और हो गया हमारा 8.314, फाइनल टेम्परेचर कितना बोला, कितना आ रहा है 4.4 T1, 4.84 T1 minus of T1 and upon gamma minus 1 minus gamma, वॉल्यूम तो कम हो रहा है ना, तो नेगेटिव आएगा ना, माइनस यूज करना है ना, 1 माइनस गामा आएगा ना, 1 माइनस गामा कितना हो गया -2/3, तो ये -2/3, अब देखो ये क्या ऑप्शन बन गया, हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, मतलब जैसे टीबी पावर गामा माइनस 1 है तो एरर लिख के हो सकता है डेल्टा टी अपॉन टी and plus gamma minus 1 into delta v upon v equal to 0. Will it save some calculation? Delta t सीधा चाहिए ना, so delta t हमारा जो है that should be equal to minus of gamma minus 1 into t delta v upon v. मतलब ऐसे ही, मतलब अगर मैच पैच कर जाए इससे तो ये कितना था गामा माइनस 1 अपना 1 माइनस गामा हो गया ना, 2/3 माइनस ना -2/3 T into delta -2/3 और ओरिजिनल टेम्परेचर होगा ये T1 इंटू डेल्टा भी माइनस कर ले दोनों को, 6 minus 0.7 5.3 कितना हो गया 5.3, so 5.3 and upon v ओरिजिनल 6, ठीक है ना, क्या चीज डेल्टा वी, हम माइनस कर लो ना, बार प्लस कर लो, मतलब मैं तो डेल्टा वी की वैल्यू लिख दी ना, तो प्लस कर लो, प्लस आ जाएगा प्लस हो जाएगा, पॉइंट 6 के आसपास हो गया ना, 0.6 9654 होता है, तो 0.6 के आसपास हो गया, 0.6, अब डेल्टा डी उसमें डाल दो, या नीचे ये सीधा ही नहीं कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा डी कितना था क्या, वर्क डन में अगर मैं डालता हूँ, सो दैट्स माइनस ऑफ म्यू आर अपॉन गामा माइनस 1, और ये पूरा डाल दे, माइनस माइनस तो प्लस हो गया, गामा माइनस 1 इंटू टी डेल्टा वी बाई वी, तो गामा माइनस 1 ही कैंसिल हो जाएगा, गामा माइनस 1 इंटू टी डेल्टा वी अपॉन वी, गामा माइनस 1 कैंसिल, सो म्यू आर टी डेल्टा वी अपॉन वी आ गया, तो भी बन गया आपका 6/22.4, आर की वैल्यू, आर तो एज इट इज ही है, आर तो ऑप्शन में एज इट इज है, T1 एज इट इज ही है, और डेल्टा वी 5.3 एंड ओरिजिनल वॉल्यूम एज 6, ये 6 भी कैंसल्ड है, 6 भी कैंसल्ड है, सो दैट्स 53/224 जो नियरेस्ट इसके साथ मैच less than 1 तो कोई भी नहीं है, less than 1 की ऑप्शन ऑप्शन लेसन ऑप्शन ही नहीं है, सारे क्रिएटर हैं, तो देखो क्या गड़बड़ करिए यहाँ पे, पहले बन रहा था, ये तो आर एज इट इज ही था, पहले बन रहा था, पहले भी नहीं बन रहा था,
कितना, ये तो मेरे ख्याल से लेस देन 1 ही आ गया ना। कहाँ मिस्टेक है चेक मारो। नहीं ये तो क्रिटिकल कैसे आर मत फिट करेगा, आर नहीं किया, आर मत फिट करेगा। आर नहीं किया, सो 3 ऊपर के 18 हो गया, 18 पे 2 9 हो गया, वो 3.84 9 इंटू 3.84 10.5 है ना। सो 9 इंटू 10.5 हमने इसमें, या ये मतलब एरर फॉर्मूले से करेक्ट नहीं आ रहा होगा। सो 9 इंटू कितना बना 3.84, सो 9 इंटू 3.84 कितना होगा 3.84 माना 4.84 माइनस 1 3.84, सो 9 इंटू 3.84 अपॉन 22.4 ये बन रहा है यहाँ से। 9 इंटू 3.84 अपॉन 22.4 ये बन रहा है। ये जा रहा है 35 के आसपास हो गया ऊपर, 35/22 के आसपास देखो क्या बन रहा है। क्योंकि इन्होंने आंसर मतलब ऐसे दिया तो इसको 1.3/2 1.5 बी पार्ट 3/2 मतलब एग्जैक्ट वैल्यू में लगता है अगर पीवी वाले से यूज करेंगे तो शायद बनेगी, हो सकता है ना। एक बार और ट्राई करके देख लेंगे बाद में इसको, फिलहाल के लिए बी पार्ट 3/2। नेक्स्ट गामा फॉर द मिक्सचर, ये तो सूखा है तो हमने पीवी दिया था काइंड ऑफ 1 mole of monatomic gas is mixed with 1 mole of diatomic gas, the value for the gamma for the पहले CV mix निकाल देते हैं, इजी रहता है। तो CV mix कैसे बनेगा, mu1 CV1, so 1 into CV monatomic 3R/2, दूसरा कितना है वो भी 1 मोल है, so 1 into 5R/2 CV divided by 1 + 1 8R/4 8R/4 कितना 2R 8R/4 तो CP mix हो गया 2R, तो CP mix कितना हो गया 3R, so गामा आ गया 3R/2R, so that is 3/2 CP mix upon CV mix, that's 3/2 or 1 point। वैल्यूज याद होने चाहिए ऐसे क्वेश्चन के लिए, वो याद है CV और CP की। दिस इज फ्रॉम द कंडक्शन आर्टिकल, एंड सीरीज एंड पैरेलल का जो केस होता है कंडक्शन में। There is a cylinder of radius r made of a material of thermal conductivity K1 is surrounded by a cylindrical shell of inner radius r and outer radius 2r, like this। ये inner radius r है, outer radius 2r। Inner material अलग है, outer material अलग है। Inner material is supposed to be of conductivity K1 and outer material is supposed to be of the conductivity K2, and the ends are maintained at 2 different temperature। तो इसके जो 2 ends हैं, इस पे θ1 टेम्परेचर है, इस पे θ2। तो ये सीरीज में है पैरेलल में, सीरीज में हीट क्या रहती है सेम, मतलब हीट का मतलब क्या होता है करंट, है ना। तो करंट सीरीज में क्या रहता है सेम, और टेम्परेचर डिफरेंस इज एनालॉगस टू पोटेंशियल डिफरेंस। तो दोनों पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना है सेम, अंदर वाली पाइप और जो शेडेड पाइप है, दोनों के क्रॉस टेम्परेचर डिफरेंस सेम होने का मतलब दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है सेम, सो दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। मतलब जो करंट होगा वो क्या होगा, सब डिवाइड होगा, मतलब हीट यहाँ पे क्या होगी, सब डिवाइड होगी, कुछ ऊपर जाएगी कुछ नीचे जाएगी। सो व्हाट डू यू नीड टू फाइंड, इफेक्टिव थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी जनरलाइज फॉर्मूला देखना है। मान लो कि आपके पास पैरेलल कॉम्बिनेशन के 2 स्लैब्स होते हैं, जैसे ये पर्टिकुलर स्लैब है और साथ में आपने एक और स्लैब अप्लाई कर लिया, एंड देन यू पास ऑन द हीट टू दिस। So heat will be received by these 2 surfaces। इसका एरिया A1 है
और ये दूसरा सरफेस, इसका एरिया कितना है A2, इसकी कंडक्टिविटी K1, इसकी कंडक्टिविटी K2, सो हीट जो है वो डिवाइड हो जाएगी दोनों में। सो H शुड बी इक्वल टू H1 प्लस H2, हीट फॉर्मूला कंडक्टिविटी इंटू एरिया डिफरेंट है, सो K1 इंटू A1, टेम्परेचर डिफरेंस सेम है, सो दैट्स θ1 माइनस θ2 अपॉन लेंथ सेम है, उसमें भी दोनों की लेंथ सेम है, सो डिवाइडेड बाय L प्लस दैट इज K2 A2 इंटू θ1 माइनस θ2 अपॉन L। अब मैंने क्या करना है, इन दोनों को हटा के सिंगल स्लैब लगानी है, क्योंकि सिंगल स्लैब लगानी है तो इफेक्टिव एरिया कितना आएगा A1 प्लस A2, टेम्परेचर डिफरेंस सेम रहेगा, लेंथ सेम रहेगी, तो K निकाल, दैट मीन दिस शुड बी इक्विवेलेंट टू K इंटू A1 प्लस A2 इंटू θ1 माइनस θ2 एंड अपॉन L, which means θ1 minus θ2 by L cancelled है, so the K effective is K1 A1 plus K2 A2 upon A1 plus A2, and it can be extended to n number of slabs connected in parallel. It is summation of Ki Ai upon summation of Ai. So you can remember a formula if you can for this. Be easier for you to apply. नहीं तो पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि एक्सप्रेशन जिस तरीके से, मतलब अगर आप क्विक है तो 30 सेकंड में आ जाएगा, फॉर्मूला सीधा पता है तो सीधा अप्लाई कर देगा। Still some of the students can make a mistake in this. Still there is a scope of making a mistake. So be careful. Warning sign बता रही है कि गलती ना करो। वैसे ऑप्शन इस तरीके से डिजाइन है कि आपकी गलती बच जाएगी, मतलब गलती से जो आंसर आ सकता था गलती से, ठीक। एरिया के अंदर गलती कर सकते थे हम, जो कि हम नहीं करेंगे, कि आउटर शेडेड एरिया देखना पड़ेगा, टोटल एरिया नहीं देखना पड़ेगा, तो बस वो गलती हमसे नहीं होगी तो हमारा आंसर आराम से आ जाएगा। सो आउटर एरिया कितना है और इनर एरिया कितना है, इनर एरिया तो पाई आर स्क्वायर हो गया और आउटर एरिया कितना हो गया 4 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, hence that is 3 pi r square and divided by total area A1 plus A2 4 pi r square. So I think pi r square cancel होके K1 plus 3 K2 by 4, so that is fitting as the C. लगे हाथ हमें रिलेशन, बाकी बातें भी समझ में आ गई कि सीरीज के अंदर हीट क्या रहती है सेम। वैसे इसका फॉर्मूला होता है थर्मल रेजिस्टेंस का, वो क्या होता है, जितनी हमारी हीट है that is K into A into θ1 minus θ2 upon L। हम इसको लिख सकते हैं H equal to θ1 minus θ2 divided by thermal resistance. The heat flows because of the temperature difference and is opposed by the thermal resistance. Right? So the value for the thermal resistance is supposed to be K, नहीं उल्टा, L upon Ka is exactly K क्या है, कंडक्टिविटी। ये बिल्कुल इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है, रो इंटू एल अपॉन ए, बिल्कुल सेम है। रो को कैसे लिख सकते हो 1 अपॉन सिग्मा, सो एल अपॉन सिग्मा ए, एग्जैक्टली द डुप्लीकेट फॉर्म, राइट। स्टीम एट 100 कैलोरीमेट्री लग रही है, मतलब कैलोरीमेट्री। Steam at 100 degrees pass into 1.1 kg of water contained in the calorimeter of water equivalent. What do you mean by water equivalent? एक आइडिया है जिससे आप स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कैलोरीमीटर की देखते नहीं है, राइट। इसका मतलब ये कैलोरीमीटर के थर्मल कैपेसिटी के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, थर्मल कैपेसिटी। W जो होता है दैट इज सपोज टू बी M into C, प्रोडक्ट ऑफ द मास इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द सब्सटेंस। क्यों ऐसा करा जाता है, क्योंकि पानी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी होती है 1, इसका मतलब एग्जैक्टली कितना है इंटू 1, है ना। तो अब MC दिख गया, इक्विवेलेंट मास ऑफ वाटर, मतलब उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी यूज हो। तो ये इजी तरीका होता है कि आपको दो डेटा क्वेश्चन नहीं देता है, मास नहीं देता, C नहीं देता, तो सीधा क्या बोल देता है वाटर इक्विवेलेंट। अब सेकेंड पॉइंट कि हम इसको यूज कैसे करें, तो हमने क्या करना होता है कि हमने सीधा इसको पानी के मास में ऐड करना, और उतना आपका न्यू
बॉर्डर आ जाएगा और अब उसके ऊपर आप कैलोरीमेट्रिक इक्वेशन अप्लाई करो। डन। तो चलो करो। तो स्टीम है हमारे पास 100 डिग्री पे और उसको हमने पास ऑन करा है 1.1 kg ऑफ वाटर पे और उसका वाटर इक्विवेलेंट 0.02 kg है, तो कितना पानी हो गया? तो 1.1 एंड प्लस 0.02, तो 1.12 kg इक्विवेलेंट वाटर आपका क्रिएट हो गया। तो लिख दिया मैंने 1.12 kg ऑफ इक्विवेलेंट वाटर कितने पे था? 15 डिग्री पे। तो पानी क्या करेगा? हीट रिलीज करेगा, एब्जॉर्ब करेगा? एब्जॉर्ब करेगा, अपना टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, है ना? कहां तक जाएगा? कहां तक जा सकता है? 100 तक। कहां तक जा सकता है? 100 तक जा सकता है। तो उसके बाद क्या हो रहा है? स्टीम कंडेंस हो गई। स्टीम कंडेंस हो गई, पानी बॉयल नहीं हुआ, स्टीम कंडेंस हो गई। तो इसका मतलब स्टीम ने हीट को लूज किया। कितना? M×L। कौन सा है? वेपोराइजेशन। m grams of steam condenses to form water। तो इक्वेशन में कैलोरीमेट्री लिखो। फाइनल टेम्परेचर क्या गिवन है? 80। तो स्टीम जो पानी बनी, पानी कितने में बनेगा? 100 में। तो 100 किस पे आएगा? 80 पे। So that is that steam converted into water into specific heat of water into 100 minus of 80, इतनी एनर्जी लॉस होगी अगर m ग्राम ऑफ स्टीम कंडेंस होती। तो पहले पानी बनाया, फिर पानी 100 पे था, वो किस पे ड्रॉप करा? 80 पे। ये सारा हीट रिलीज हो गया और एब्जॉर्ब किसने करा? उसने। कैलोरीमीटर और वाटर ने मिलके, पर कैलोरीमीटर का हमने वाटर इक्विवेलेंट लगा दिया। तो कुल मिला के वहां पे कितना हो गया मास? दैट इज 1.12, ठीक है ना, इनटू, और वो किस में है? किलोग्राम में है। तो सेफ्टी के लिए ग्राम्स में रख लें, क्योंकि बाकी सारी यूनिट्स हमने किसमें रखी हुई है? सीजीएस में। तो 1120 हो गया, है ना। एंड इनटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर एंड टेम्परेचर चेंजेस, 80 माइनस 24। तो टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर कितना है? 80 है। तो पानी कहां से कहां तक राइज करा? फ्रॉम 15 to 80, सॉरी 15 to 80, दैट इज 80 माइनस ऑफ 15। ये आ गया, अब आप सॉल्व कर लो और m की वैल्यू आपकी ग्राम्स में आ जाएगी, 1000 से डिवाइड करके किलोग्राम में आ जाएगी। LV कितना है? LV 540। सो दैट्स m कॉमन इनटू 540 प्लस 100 माइनस 80, 20 हो गया, एंड दैट इज 1.12 इनटू 10 पावर 3 इनटू 65। 0.130 600 हो गया ना सीधा? 560, सॉरी 560। सो 1120 अच्छा, इसका डबल हो गया ना, है ना। तो इनटू 10 पावर वो तो सीधा केजी आ गया। ये सॉल्व हो गया और आपको कितना है? 0.1। डन, इजी। रीड सेस। ओह, ये लग रहा है कि मैंने आंसर बता रखा है, ऐसे लग रहा है, बाकी आप देखो, रीड करो। 70 कैलोरीज ऑफ हीट है, उसको दिया हुआ है 2 मोल ऑफ आइडियल गैस को कांस्टेंट प्रेशर पे टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए 30 से 35 पे। अमाउंट ऑफ हीट उसमें से कितनी चाहिए ताकि कांस्टेंट वॉल्यूम पे जब प्रोसेस चलेगा तो फिर कितनी हीट चाहिए? तो थोड़ा ट्विस्टेड है, पर है वही, मतलब डेल्टा क्यू वो कह रहा है कि अगर आइसोबेरिक में चल रहा था कांस्टेंट प्रेशर पे, तो 2 मामलों में यूज हो रहा था, एक वॉगडन में और एक डेल्टा यू में। अब वो कह रहा है सेम टेम्परेचर रेंज पे आइसोकोरिक बना दो। तो सेम टेम्परेचर रेंज पे आइसोकोरिक बनाने का मतलब, इसका मतलब क्या? लाइन का मुझे समझ नहीं है। डेल्टा यू 0, डेल्टा यू सेम रहेगा, इसका मतलब ये, क्योंकि सेम टेम्परेचर पे, एंड डेल्टा यू इज अ स्टेट वेरिएबल। तो अगर आपने इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर सेम रखा है तो कौन सा प्रोसेस चल रहा है इससे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इसका मतलब दोनों प्रोसेस में अलग अलग है, या आइसोबेरिक या आइसोकोरिक, दोनों में कनेक्टिविटी क्या बन गई? डेल्टा। लेकिन यहां पे सारी की सारी किस में चलेगी? डेल्टा यू में। और वर्क डन क्या होगी? एडिशनली जो आपने बोला बिल्कुल सही है कि वर्क डन 0 होगा।
तो डेल्टा यू की वैल्यू डेल्टा क्यू भी यहां डाल दो। इसका मतलब बेसिकली डेल्टा क्यू पी जो है दैट बिकम्स डेल्टा क्यू वी एंड प्लस डेल्टा डब्ल्यू, ये बन गया। और ये अल्टीमेटली वहीं जाके टपक गया, क्योंकि डेल्टा क्यूपी हो गया म्यू सीपी डेल्टा टी, और डेल्टा क्यूबी हो गया म्यू सीबी डेल्टा टी, है ना। और वर्क डन ये आइसोबेरिक वाला था, सो म्यू और डेल्टा टी। तो ये फिर से अपना मेस रिलेशन बन गया। तो वापस से सीपी इक्वल टू सीबी प्लस आर की तरह डिवाइड हो गया। तो और वो गैस अपनी कौन से निकली वापस से डायटोमिक। तो डायटोमिक का मामला सेम आ गया कि ये 7r/2, ये आपका 5r/2 एंड दिस इज r। तो वो उसी तरीके से डिवाइड हो गई। क्वेश्चन के पूछने का अंदाज बदल गया पर बेसिक सेम रह गया। तो 70 थी तो 50 और 20, है ना। तो इसका मतलब डेल्टा क्यू भी कितना होगा? So if it is taken through the isochoric, it is 50. And then it keeps to your intelligence if you get such kind of a question, how much time you invest on it. Now you can go by this as I explained to you, or it can be done in flash in 5 seconds. Clear है? अच्छा मान लो ये मोनोटॉमिक गैस होती, फिर आंसर बताना। हो सकता है इसमें ऑप्शन ना हो। अगर वो मोनोटॉमिक गैस होती तो फिर बताना। तो फिर डिवीजन कैसा होता? 5r/2 3r/2 r, मतलब 5r 3r 2r। तो मतलब कैसे? 3/5। डोंट यू रिमाइंड दिस ऑफ द वैल्यूज फॉर गामा? डायटोमिक में 7 and 5 और इसमें 5/2। समझ आ रही है? तो देयर आर वेज ऑफ रिमेम्बरिंग, है ना। तो इसका मतलब कितना? 3/5। तो अगर वो इनपुट 50 थी तो कितनी होगी? 3/5 ऑफ 70, 3/5 ऑफ 70 होगी ना। तो 14 into 3 42। ऐसा क्वेश्चन किया था हमने कल? 30 केल्विन एंड 42 केल्विन। सो ये आइसोबेरिक और आइसोकोरिक का मामला ऐसे ही चलता है। आइसोबेरिक तो ज्यादातर क्वेश्चन देखोगे उसमें एडियाबैटिक और आइसोथर्मल के कंपैरिजन पे चलेगा मामला, और फिर आइसोकोरिक एंड आइसोबेरिक के कंपैरिजन पे चलेगा। नेक्स्ट वन, ये तो सुख है, ये तो केमिस्ट्री क्वेश्चन लग रहा है। गैस कौन सी है बताओ? पीरियोडिक टेबल में घूमने लगे दिमाग में, कैलकुलेट करके बताना है। दिमाग लगाने लगे। तो हमें बता रखा है कि कोई डायटोमिक गैस है, तो देख लो सारी डायटोमिक तो नहीं है सारी। सो विच इज दैट पर्टिकुलर गैस, ये बताइए। आरएमएस स्पीड गिवन है 1930। रूम टेम्परेचर अब ये बड़ा क्रैक लेंगे कि रूम टेम्परेचर कितना होगा। थर्मामीटर लेके जाएंगे उस दिन जितना होगा। लेंगे कौन सा 290 के लेके कोई सॉल्व करेगा? ले भी लेगा तो सॉल्व तो करेगा नहीं। रूट ऑफ 3RT/m, so 3 into 8.314 into 300/t m निकालना। 3.8.314 25 ले लेते हैं अप्रोक्सीमेटली। 3R याद रखो, 825 कर लेना है। कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाएगी। 25 into 300/m, $50 √3। स्क्वायर भी करना पड़ेगा ना, सो 1930 into 1930 तो रूट में ही है ना, तो स्क्वायर तो करने पड़ेगा। तो रूट लगाने का हमें फायदा नहीं होगा। बस उल्टा उल्टा 1/। तो पॉइंटों में निकाल लो, किसने बना दिया पॉइंटों में नहीं निकाल सकते? निकाल लो। एम किस में आएगा?
क्विंटल में, टन में, स्लग में, पाउंड में, किस में आएगा? इवेंचुअली विल गेट इन ग्राम. जादू है, जादू है. मतलब 8.314 MKS में थी, हाँ, और मास तेरा आ जाएगा ग्राम में. जादू अपने आप जादू बन गया और ग्राम में आ गया मास. किस में आएगा भाई मेरे? किलोग्राम में. अब ये इसके मास किस में होते हैं? तो क्या करना पड़ेगा? 1000 से मल्टीप्लाई. तो तेरे पॉइंट्स उड़ गए, वो वाले नहीं, ये वाले पॉइंट उड़ गए. तो मल्टीप्लाई बाय 1000 कर ले, अपने ग्राम्स में आ जाएगा. तो पॉइंटों की दुनिया से बाहर आ गया. सबके मास भी पता होने चाहिए. मास ही पता है. क्लोरीन का कितना? मैं तो वैसे करूँगा हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन यहीं तक आता है. कितना फ्लोरीन का? फ्लोरीन का फ्लोरीन का 90 नहीं, एफ है ना, F2 फ्लोरीन. क्लोरीन ही है ना. फ्लोरीन का इतनी तो कुछ गांधी होगी. वो क्लोरीन है. CCl2F2. टिपिकल 193 वैल्यू पे दी हुई है. 298 से तो कैंसिल नहीं होता. 273 से भी नहीं होता. किसी को डिग्री ले दी हो ठंडे का मौसम. ये तो अभी लग रहा था आसान क्वेश्चन है. हाइड्रोजन ही है. कितना आ रहा है? वैल्यू कितनी आ रही है? 2 के आसपास आ रही है. इतनी तो काफी होती है. 193 का स्क्वायर कितना हुआ? 1.9 का स्क्वायर ले लेते हैं, तो 2 का स्क्वायर ले लेते हैं. 4 हो गया. 4 हो गया. 25/4 6.25 into 3 19 के आसपास आ गया. तो 20 के आसपास, 2 के आसपास हो गया. खत्म. हाइड्रोजन हो गया. तो भी तुमने पूछा ना कि बाकी के मासेस बता दो पहले. अगर 2 के फैक्टर्स में होते हैं तो फिर दिमाग लगाते फिर आगे. ये बस एक 2 हटा दो, 23 साल का क्वेश्चन बन जाएगा जो आया था किसमें, तो PDQ आया था उसमें. ये भी स्क्वायर है, किसी में आया था. तो PD स्क्वायर था, तूने दिया था ना, तो PDQ तो NACP में आया था. फिर PD स्क्वायर इक्वल टू कॉस. कितना निकालना बता, कितना निकाले? वॉल्यूम कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन का मतलब आएगा कैसे? गामा निकालिए. गामा V क्या होता है? V0 इंटू 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा. ही होता है ना. कितना निकाले? या फिर ऐसे लगा लें, डेल्टा V इज इक्वल टू V0 गामा डेल्टा T लिख लें, टेम्परेचर चेंजेस. तो इसका मतलब गामा कैसे मिलेगा? दैट विल बी डेल्टा V अपॉन V0 इंटू 1 अपॉन डेल्टा T. सही लिखा? तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, गामा इज इक्वल टू 1 अपॉन V इंटू dV अपॉन dt. सही है? तो dV अपॉन dt ऑपरेट कर लो. मतलब आओ पूरी इक्वेशन बना लो सही वाली. PD स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट है और आइडियल गैस है कि नहीं है? अरे लिखा है ना. तो मतलब PV इक्वल टू म्यू RT बोनस में. आपको क्या चाहिए? V एंड T. P उड़ा दो. तो P कितना है? म्यू RT बाय V. वहां डाल देते हैं. तो म्यू RT अपॉन V इंटू T स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट. इसका मतलब आपका क्या बन गया फिर? TQ is equal to C upon mu R and into so dV upon dt करना है ना, तो उल्टे लिख लेते हैं. तो ये mu R upon C हो गया into 3D स्क्वायर. तो उसमें प्लेस कर. So the gamma should be equal to 1 upon V. V यहाँ से आ जाएगा mu RT by P. देखो डाल के देखो 1 upon V into dV upon dt यहाँ से आ गया. That is mu R upon C की वैल्यू भी डालनी पड़ेगी ना आपको, फिर आ जाएगा आंसर.
मतलब हो सकता है कोई और शॉर्ट तरीका हो, मतलब मैंने लंबे तरीके से डिफरेंशिएट मार लिया। v कितना है, म्यू आर टी बाई पी, आ जाएगा आंसर। v कितना है, म्यू आर टी बाई पी, ये हो गया म्यू आर टी अपॉन पी इंटू म्यू आर, ये तो उड़ गया, और नीचे c है, c कितना है, पी डी स्क्वायर, सो दैट्स पी डी स्क्वायर इंटू 3d स्क्वायर, सो p गया और 3d स्क्वायर है ना, 3/t यार, नीचे t क्यूब है ना, नीचे डी क्यूब कैसे, नीचे डी सर स्क्वायर, म्यू आर इनटू अच्छा एक और भी तो है, ये भी तो गया, सो दैट बिकम 3 अपॉन है ना, ठीक डन। उल्टा भी कर सकते थे कि मतलब यहाँ से p उठा के उसमें डाल देते, हो सकता था उस तरीके से थोड़ा सिंपल हो जाता, सीधा हो जाता। नेक्स्ट कैलोरीमेट्री ही लग रही है। Water of volume 2 liter in a container is heated with a coil of the power 1 kilowatt at 27. The lid of the container is open and energy is dissipating at the rate of 160 joule per second. मतलब open process हो गया. In how much time temperature will rise from 27 to 77? How much time? मतलब power based question है. So power कैसे आएगा? Delta Q upon delta T. इसमें कुछ डालो हो जाएगा कुछ, पावर गिवन है, खत्म क्वेश्चन भी बचा, मास गिवन है नहीं, कुछ और भी गिवन है ना, दो पावर है, एनर्जी डिसिपेट हो रही है, तो कितनी रह गई, 1 किलोवाट में से 160 उड़ा दो, तो 1 किलोवाट मतलब 1000 में से 160 गई 840, इसका मतलब पावर आपकी 840 का एफिशिएंसी लगा के, राइट, इज इक्वल टू डेल्टा क्यू एम एस डेल्टा थीटा। तो मास कितना है, बताओ कितना, वॉल्यूम 2 लीटर मतलब 2 into 10 पर -3 एंड इनटू डेंसिटी 10 पर 3, तो 2 ही हो गया, 2 किलोग्राम, राइट। सो 2 into स्पेसिफिक हीट 4.2 किलो है ना, तो 4.2 into 10 power 3 and into change in temperature 77 minus 27, केल्विन में कन्वर्ट करना होगा, नहीं जरूरत होगा, चेंज इन सेल्सियस से चेंज इन केल्विन सेम होगा, तो 77 minus 27 कितना हो गया 50 एंड डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, वो निकालना है, देखा तो फिट हो गया, ये देखो ये पूरा 500 आ गया, डेल्टा टी की वैल्यू 500 आ गई, और 500 मिनट में कन्वर्ट कर लो, सेकेंड्स है ना ये, so 6 8 48 8 minute 20 seconds 8 minute easily। और करते हैं, जैसे कंडक्शन लग रहा है, रॉड्स है, दो आइडेंटिकल रॉड्स आर कनेक्टेड बिटवीन टू केयर, one of them is at 100 degree containing water, another is 0 degree Celsius containing ice, मतलब दो एंड्स पे टेम्परेचर 100 और 0 है, और दो रॉड्स है, और दोनों को पैरेलल में रखा है, तो रेट ऑफ मेल्टिंग ऑफ द आइस इज Q1, और फिर उनको सीरीज में रख दिया, सो रेट ऑफ मेल्टिंग ऑफ द आइस इज Q2, देन द रेशियो Q2 अपॉन Q1 विल, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के हिसाब से करके देख लो, एक बार सीरीज में एक बार पैरेलल में, इलेक्ट्रिसिटी में भी तो ऐसा क्वेश्चन बनता है ना, है ना, बनता है ना, पावर का क्वेश्चन बनता है कुछ, तो बिल्कुल ऐसा करके देख लो, अगर तो वो सीरीज में हुए तो रेजिस्टेंस कितनी होगी, 4 n स्क्वायर आ जाएगा, वैसे 4 या 1 में 4 पैरेलल दिया होगा, देख लो, नहीं मैं सीरीज में क्रॉस चेक कर लो, 1 में डाउट है तो 4 के चक्कर में 4 नंबर जाएंगे, मतलब हमारे मतलब हीट का जो फॉर्मूला, हीट तो सेम चाहिए होगी, नहीं हीट अलग है ना, Q1, तो Q1 जो हुआ वो हीट होगी ना, हीट पर सेकेंड होगी, पावर हो गया, शुड बी इक्वल टू टेम्परेचर डिफरेंस सेम है 100 - 0 अपॉन रेजिस्टेंस, तो पहले किसमें है पैरेलल, तो रेजिस्टेंस कितनी होगी R/2, और Q2 जो हो गया टेम्परेचर डिफरेंस सेम है, एंड्स तो सेम ही है, और सीरीज रेजिस्टेंस कितनी होगी 2R, सही है ना, तो Q1 into R/2
दैट बिकम्स Q2 into 2R. R and R cancel. हमें पूछा गया Q2 by Q1, so that becomes 1 upon 4. नंबर बजा लिया मैंने. मतलब एंड तक पूरा कॉन्फिडेंस मतलब मेरे को रोक रहे थे कि मत करो, यहाँ पे हो गया, आ गया. ठीक है, एक तो फॉर्मूला मैंने अभी बनाया था पीछे, काम आ गया. ये जो हीट फ्लो है, हीट करंट है, दैट इज इक्वल टू टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन द रेजिस्टेंस. इसमें व्हीटस्टोन ब्रिज का क्वेश्चन है, प्रीवियस आईटी देखा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देखना ऐसे इस तरीके से. ये पूरा एक व्हीटस्टोन ब्रिज का क्वेश्चन है, बिल्कुल ऐसा. उसमें थर्मल कंडक्टिविटीज गिवन है और थर्मल कंडक्टिविटी के रेशियो से रेजिस्टेंस का रेशियो आ जाएगा. वो रेजिस्टेंस बिल्कुल P/Q इक्वल टू R/S में फिट होंगे. फिर सेंटर वाला डिस्कनेक्ट हो जाएगा. फिर उसने पूछा होगा इस पॉइंट का टेम्परेचर बता. तो आपने पूरा इलेक्ट्रिसिटी के लिए क्वेश्चन सॉल्व करना है और इस पर्टिकुलर पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है ना, तो सॉल्व हो जाएगा. सेम क्वेश्चन आपको फ्लूइड मैकेनिक्स में, जिसमें सेट ऑफ 5 पाइप्स है और सबकी लेंथ और सब कुछ गिवन है पॉजिटिव लगा के, और पूछा हुआ है कि इन दोनों पॉइंट का प्रेशर बता दो. और इधर का प्रेशर गिवन होगा, इधर का प्रेशर गिवन होगा, इसका 2P0 गिवन होगा, इसका P0 गिवन होगा. इन दोनों पॉइंट का प्रेशर बता दो, सेम आएगा, वो निकालना होगा. सिंपल इलेक्ट्रिसिटी एनालॉग से. एक क्वेश्चन और करते खत्म करते हैं आज का सेशन. सो दिस वन ग्राफ के क्वेश्चन. ये देखा हुआ ग्राफ लग रहा है, ये भी देखा हुआ ग्राफ लग रहा है. लैडर कर्व कौन सा वाला, हीटिंग कर्व जैसे कल किया, और हैवी वैसा टेम्परेचर वर्सेस टाइम ही बोल रहा है वो कह रहा है लिक्विफाइड ऑक्सीजन मतलब, लिक्विफाइड ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन लिक्विफाई हो गई, मतलब ऑक्सीजन लिक्विड स्टेट में है. सो एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज हीटेड फ्रॉम 50 to 300 बाय सप्लाइंग हीट एट अ कांस्टेंट ग्राफ ऑफ द टेम्परेचर वर्सेस टाइम विल. लिक्विड स्टेट में टेम्परेचर बढ़ाओगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो पहले क्या होगा, पहले स्लोप आएगी MC डेल्टा डेटा, फिर वेपराइजेशन पे आ जाएगा, फिर वेपराइजेशन होगी तो टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा, फिर वेपर बन जाएगा, फिर वेपर की स्लोप आ जाएगी. सी होगा डेल्टा Q इक्वल टू स्ट्रेट लाइन है ना, कल ही देखा था. क्लोज करें आज के लिए, टाइम हो गई. एक कार्नेट इंजन बताना था मैंने, कार्नेट इंजन की बेसिक वर्किंग बता रहे थे. ज़्यादा थ्योरी पे तो नहीं जाएंगे, प्रोसेस में मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया था. कार्नेट इंजन में 4 साइकिल्स होते हैं. दीज आर द 4 साइकिल्स. कैन यू नेम द साइकिल्स? सबसे पहले होती है आइसोथर्मल एक्सपेंशन, देन एडियाबैटिक एक्सपेंशन. नोइंग द प्रीवियस फैक्चुअल्स दैट स्लोप ऑफ एडियाबैटिक एक्सपेंशन इज मोर देन आइसोथर्मल. हमने स्केच भी वैसे गामा टाइम से है ना, लेकिन ज्यादा है मतलब स्टीपर है, तो इसलिए सेकंड वाला क्या है, एडियाबैटिक. सो A to B and this is supposed to be your isotherm. That isotherm is at high temperature TH. फिर एडियाबैटिक कूलिंग है, दिमाग में क्या रखना आपने, एडियाबैटिक कूलिंग. कूलिंग में क्या होगा, टेम्परेचर नीचे जाएगा. पूरे कार्नेट साइकिल में 2 ही टेम्परेचर चलते हैं, एक सोर्स का टेम्परेचर, एक सिंक का टेम्परेचर. सोर्स का टेम्परेचर कितना है, कांस्टेंट TH, और सिंक का कितना TH. सो एडियाबैटिक प्रोसेस कार्नेट इंजन में आपने किस तरीके से यूज करने हैं, कूलिंग या हीटिंग में. इसका मतलब या तो TH से TL की ट्रांसफॉर्मेशन या TL से TH की ट्रांसफॉर्मेशन, इतना आपने दिमाग में रखना है. ठीक, तो यहां से आपकी TH से TL की ट्रांसफॉर्मेशन होगी, ठीक, क्या हो गया आपका एडियाबैटिक कूलिंग हो गया. यहां तक आपका एक्सपेंशन प्रोसेस चलेगा, वर्क डन आपका पॉजिटिव रहेगा. अब उसके बियॉन्ड आपका कंप्रेशन चलेगा. तो ये क्या आइसोथर्मल, किस टेम्परेचर पे, TL पे. सो वंस अगेन इट्स एन आइसोथर्म एट ए टेम्परेचर TL. उसके बाद साइकिल प्रोसेस कंप्लीट करना, सो इट इज आइसोथर्मल कंप्रेशन. रीस्टोरिंग द वैल्यू कहां से, TL से TL, उसके लिए आपका एडियाबैटिक लगेगा. अब क्या है, एडियाबैटिक हीटिंग, रीस्टोरिंग फ्रॉम TL टू TH. करेक्ट है. ऊपर वाला जो प्रोसेस है आइसोथर्मल TH, कौन सा प्रोसेस है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन.
इसमें हीट एब्जॉर्ब होती है। इसका मतलब इसमें यू विल हैव द हीट एब्जॉर्ब्ड एज QH, क्योंकि एडियाबैटिक में तो हीट एक्सचेंज हो नहीं सकती। इसका मतलब जो ये वाले पार्ट है वो सिर्फ किस लिए यूज हुआ है? टेम्परेचर वेरिएशन के लिए, दिमाग में रखना। और जो आइसोथर्मल है वो किसके लिए यूज हो रहे हैं? हीट एक्सचेंज के लिए। अब अगर एक्सपेंशन हो रही थी तो हीट एब्जॉर्ब होगी, और कंप्रेशन होगी तो हीट रिलीज होगी। इसका मतलब ये क्या बन जाएगा? आपका QL आ जाएगा। क्लियर होगी बात? अंडरस्टूड है? अब आता है सेकेंड लॉ, बेसिकली एफिशिएंसी की बातें करें। एफिशिएंसी कैसे आएगी? दैट इज सपोज टू बी इक्वल टू वर्क डन अपॉन हीट इनपुट। हीट इनपुट सिर्फ इसमें है, और वर्क डन कैसे आएगा? QH माइनस ऑफ QL, फर्स्ट लॉ से। वो क्यों? बिकॉज फॉर एवरी साइक्लिक प्रोसेस डेल्टा यू कितना है? 0। तो डेल्टा क्यू कितना हुआ? QH प्लस माइनस QL पूरी साइकिल में। एडियाबैटिक में तो कुछ हुआ नहीं। आइसोथर्मल एक्सपेंशन में QH, कंप्रेशन में माइनस QL इज इक्वल टू वर्क डन, क्योंकि डेल्टा यू 0 है। तो वर्क डन का एक्सप्रेशन कितना बन गया? QH माइनस QL, वहां प्लेस कर दिया अपॉन QH। Hence this becomes efficiency as 1 minus QL upon QH। हम प्रेफर करते हैं मॉड में लिखना, अपने से गलती ना हो। वैसे तो पता ही होता है कि एफिशिएंसी 1 से ज्यादा होगी नहीं, तो QL का साइन अपने नेगेटिव डालना होता है ना, तो गलती से हम उसको प्लस ना करें। आइडियल इंजन होता है तो एफिशिएंसी कितनी होती है? 1, पर वो होता ही नहीं है। कार्नेट इंजन इज नॉट एन आइडियल इंजन, अंडरलाइन। कार्नेट इंजन इज अ theoretical engine which has the maximum efficiency in comparison with any other practical engine operating between the same temperature of source and sink। मतलब आपने एक सोर्स का टेम्परेचर डिसाइड किया, आपने सिंक का टेम्परेचर डिसाइड किया, आपने बोला मैं अपनी मर्जी के इंजन बनाऊंगा, 10 लोगों को टास्क दे दिया, 10 लोगों ने इंजन बनाया, लेकिन 10 ने सोर्स और सिंक का टेम्परेचर सेम रखा, सबने वर्क परफॉर्म किया, उस वर्क को आपने यहां पे प्लेस किया, तो सबकी एफिशिएंसी अपनी अपनी आएंगी, करेक्ट है ना। तो कार्नेट इंजन की मैक्सिमम आएंगी। हमें यू नो द रीजन व्हाई, क्योंकि उसके जो कंपोनेंट पार्ट हैं, कंटेनर्स हैं, वो सारे आइडियल, परफेक्टली इंसुलेटिंग, परफेक्टली कंडक्टिंग, ऐसी चीजें होती नहीं है। पिस्टन इज परफेक्टली मासलेस, पिस्टन इज परफेक्टली फ्रिक्शन फ्री, ऐसी चीजें होती नहीं है। प्रैक्टिकली फ्रिक्शन होगा, प्रैक्टिकली हीट लॉसेस होंगे, एडियाबैटिक प्रोसेस आप कभी कर ही नहीं पाओगे क्योंकि हीट एक्सचेंज होगी। इसका मतलब देयर विल बी द रेडिएशन लॉसेस, देयर विल बी द कैलोरीमेट्रिक लॉसेस, है ना। तो इसकी वजह से जो एफिशिएंसी है वो ड्रॉप करेगी। कार्नेट थ्योरम यही होती है जो कि हमें ये समझाती है कि जो थ्योरेटिकल एफिशिएंसी है इट इज ऑलवेज मोर देन प्रैक्टिकल एफिशिएंसी। ये जो फॉर्मूला लिखा गया है, ये फॉर्मूला आपका है फॉर द प्रैक्टिकल एफिशिएंसी, ये वाला नहीं, वो झूठ फॉर्मूला है। वो झूठ क्यों है? क्योंकि फर्स्ट लॉ दे रहा, फर्स्ट लॉ झूठ है। फर्स्ट लॉ एफिशिएंसी के बारे में बता ही नहीं सकता, इट्स अ लिमिटेशन ऑफ द फर्स्ट लॉ। तो अगर आपको लगा कि ये और ये फॉर्मूले सेम है तो आप गलत हैं, आप गलत हैं, समझ रहे? फर्स्ट लॉ की वजह से सेम है, लेकिन हो ही नहीं सकते क्योंकि वो सिर्फ हीट क्या बोल रहे हैं, QH एंड QL, ऐसा थोड़ी होगा। एडियाबैटिक प्रोसेस परफेक्टली हो ही नहीं पाएगा, तो कुछ एनर्जी लॉसेस होंगे, वो अनअकाउंटेड है। इस वजह से ये इसके बराबर फॉर्मूला नहीं है, ये सिर्फ आइडियलिस्टिक कंडीशन में है। तो इसका मतलब आपको एक्चुअल वर्क कितना है वो देखना पड़ेगा विद फ्रिक्शन, उस एक्चुअल वर्क को यहां पे प्लेस करो। QH आपका इसी से है, QH वहीं से आएगा, वो प्लेस करोगे, प्रैक्टिकल एफिशिएंसी आएगी। अब सवाल आता है कि थ्योरेटिकल एफिशिएंसी कहां से आएगी? वो इस साइकिल के थ्रू आती है जिसको हम कार्नेट साइकिल बोलते हैं। कार्नेट साइकिल के 2 फेजेस हैं। कार्नेट साइकिल एक परफेक्ट रिवर्सिबल इंजन की तरह काम करता है। अगर आप उसको क्लॉकवाइज चला रहे हो तो उसको बोलते हैं वर्किंग ऑफ द हीट इंजन, और अगर आप उसको रिवर्स चलाओगे दिस विल बी नोन एज ए रेफ्रिजरेटर। दोबारा से, अगर आप इसको क्लॉकवाइज चलाओगे इट विल बी नोन एज ए हीट इंजन, जिसके अंदर वर्क पॉजिटिव होगा, इंजन खुद काम करेगा, हेंस द एरिया एनक्लोज्ड विल कम आउट टू बी पॉजिटिव। पर वो प्रैक्टिकल वर्क नहीं होगा, वो थ्योरेटिकल वर्क है। समझ आ रही है ना? जो इसका एरिया आएगा, प्रैक्टिकल वर्क वो होगा जो कि क्वेश्चन में गिवन होगा कि इतना वर्क रिकॉर्ड किया गया, या आपको मैनुअल फोर्स गिवन हो, डिस्प्लेसमेंट हो, जिसके थ्रू आपने वर्क निकाला एक्चुअल सिनेरियो। इसका जो एरिया आप इवैल्यूएट करोगे दिस इज गोइंग टू बी योर थ्योरेटिकल वर्क,
तो उससे थ्योरेटिकल एफिशिएंसी है। क्लियर है? अभी बड़ा मुश्किल होगा क्योंकि आपको ये सारा निकालना पड़ेगा। तो इसकी 6 पॉइंट डेरिवेशन, जिसके अंदर आप QH की वैल्यू प्लेस करोगे। QH कितना होगा? बहुत सिंपल है, म्यू आर TH लॉग ऑफ VB अपॉन VA, क्योंकि आइसोथर्मल में डेल्टा U कितना है? 0। तो डेल्टा Q किसके बराबर है? वर्क डन के। तो आइसोथर्मल का वर्क डन तो पता है मेरे को। तो म्यू आर T, मतलब T कितना है यहाँ पे? TH लॉग ऑफ फाइनल वॉल्यूम अपॉन इनिशियल। QH आ गया आपके पास, डन हो गया है ना। वैसे ही यहां से QL आ जाएगा, माइनस लगाना है क्योंकि नेगेटिव है, म्यू आर TL। ऐसा क्वेश्चन भी करा था हमने कल, वो PD ग्राफ था, बस इतना फर्क था। तो माइनस म्यू आर TL लॉग ऑफ, इसको C और इसको D लिख लो, तो VD अपॉन VC आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? राइट, वो वैल्यूज यहां पे प्लेस कर दोगे। इन दोनों पॉइंट्स के बीच में आपने अप्लाई करना है TV गामा -1, तो मतलब TH VB गामा -1 इज TL VC गामा -1, वो BC एडियाबैट पे, और DA एडियाबैट पे, दैट इज TL VD गामा -1 इधर से, दैट इज TH VA गामा -1। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग रिलेशन। दोनों को डिवाइड करोगे तो VB अपॉन VA विल कम आउट टू बी VC अपॉन VD, क्योंकि गामा -1 भी कैंसिल हो जाएगा, TH TH TL TL भी कैंसिल हो जाएगा। ये इंटरेस्टिंग रिलेशन है। इसके बेस पे 4 5 6 क्वेश्चन देखेंगे इस रिलेशन के बेस पे, राइट। तो इसका फायदा क्या है? देखो थोड़ा एडजस्ट कर लो, तो VB अपॉन VA वो आइसोथर्म का फाइनल वॉल्यूम अपॉन इनिशियल है, और अगर VC अपॉन VD देखोगे और उसको रिवर्स कर लोगे, मतलब तो वो आपका C to D आइसोथर्म का इनिशियल और फाइनल वॉल्यूम। ठीक है ना। तो इस वजह से जब आप 1 माइनस एफिशिएंसी प्लेस कर रहे हो तो QL कैसे आ रही है? म्यू आर TL इंटू लॉग ऑफ VD बाय VC आना चाहिए था, पर माइनस होगा तो VC बाय VD हो जाएगा क्योंकि QL नेगेटिव है। सो इट विल बी VC अपॉन VD, क्योंकि कंप्रेशन है ना, उसमें वर्क डन नेगेटिव आता है, डिवाइडेड बाय A टू B में, दैट इज म्यू आर TH लॉग ऑफ कितना? VB अपॉन VA। तो म्यू आर तो कैंसल्ड है, और इस वजह से ये पूरा कैंसिल हो गया। हेंस दिस एफिशिएंसी क्या बोलेंगे? थ्योरेटिकल। प्रैक्टिकली इंजन कभी नहीं चला, दैट इज 1 माइनस TL अपॉन T। सो दिस इज अ फॉर्मूला फॉर ए थ्योरेटिकल एफिशिएंसी। और अगर इसका एरिया निकाल के डाला तो ये सेम आएगा, ये आंसर। लेकिन जो प्रैक्टिकली वर्क गिवन होगा वो यहां प्लेस करोगे तो प्रैक्टिकल एफिशिएंसी। बस समझ में आ रही है? राइट। सो इसका मतलब कार्नेट इंजन क्या बोलेगा कि दोनों को कंपेयर करो, तो यहां से जो निकालोगे वो आपकी ज्यादा है। फर्दर इट ओनली डिपेंड्स अपॉन सोर्स एंड टेम्परेचर ऑफ द सोर्स एंड क्लियर? दैट्स अ कार्नेट इंजन। इट्स अ परफेक्ट रिवर्सिबल इंजन assumed of course। TL 0 हो सकता है, टेम्परेचर ऑफ द सिंक 0 हो सकता है, अगर हो जाए तो 100% हो जाएगा, एंड दैट एनी वे कैन डिफाइन योर एब्सोल्यूट जीरो। तो अगर एब्सोल्यूट जीरो हो गया तो एफिशिएंट हो जाएगा। तो सेकेंड लॉ उसी पे कॉन्ट्रडिक्ट कर देता है और बोल देता है ऐसा नहीं हो सकता, एंड दैट विल बी द स्टेटमेंट ऑफ द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। दैट्स इट, क्लोज करते हैं।